Assalamu alaikum, students. Welcome to the class. I hope you people are doing great. I have a good day as well. Walaikum assalam to all of you. So, class, basically, I'm Adila Nahid and I will be teaching you people English. I can see some of my old students here, but all those students who are new into the class, I will be teaching you people English, and I hope we people have a pleasant time as well. Walaikum assalam, Shiza, Aksa, Asma, Ali, Aman. I'm good. What about you people? How was your day? Okay, class. So today I welcome you people in today's session and today's class. And Walaikum assalam, Jawad. English is the type of the subject which somehow students consider it as very easy and they take it as a piece of cake sometimes, and it becomes a custom, or you can say a belief of the students that English is the type of the subject which is somehow very easy, and most of the time students do not take time or spare time to study this subject. For but all those students who are new to this session or who are new with me, I would be recommending you at the very start of today's session, at the very start of today's class, that try to read as much as possible, because you people must have seen in your first year exams as well that the exams of English basically of first year and second year is all about vocabulary. The more you people have a rich vocabulary, the more you people can use basically new words or innovative types of words, the more chances are to score good marks in English paper. And students basically can get above 90, above 95 marks. Most of my students who have a very not that much complicated type of vocabulary, but at least if they are using different words in each question, so they can get above 95 marks. Okay, and this is something very easy. Like gone is the time when students used to take like 82 get or take 82 marks or 72 marks. Highest marks would used to be like in board exams as well, used to be 83 or 85, but now students are getting above 90s, and one of the only reason of getting such marks is the grammar, of course, but more than grammar, if you people have good reading skills or you people can write good, so you people can score good marks in English. ठीक है. Walaikum assalam, Dania. Okay, class, so let us start with our today's topic, and that is conditional sentences. So, class, before starting our today's lecture, I will be liking you people that do you people have any idea about conditional sentences? Let me know about your knowledge about conditional sentences in comments. There are four types. Okay, Abdul. Okay, Faryal. So please tell. आप सारों ने बताना है. Let me know कि basically what do you think about conditional sentences? I'm waiting for your answers. Just bring out your like
thoughts related to it that आप लोगों को what do you think of conditional sentences when you hear them? ठीक है, zero conditional में present simple ठीक है जी, and others. Amara is saying that zero first, second, and third conditional. ठीक है, good. Ali is saying please teach the grammar topics in the vocabulary and grammar section of the chapters. Of course, why not? They tell about a certain condition that is likely or unlikely to happen. ठीक है, for y'all, good. Who is saying that they are used to show situations? ठीक है, good. Who? Shiza. Okay, Shiza. Shiza is saying that hypothesis and ठीक है. First conditional. ठीक है, Abdul. Good, ma'am. This topic isn't included. Ali, this is one of the most important topic that is included in your objective paper, and 2 marks are always included like in this topic. So how can you say that this is not included? Universal truth, ठीक है. Conditional sentences describe a situation and its possible result. ठीक है जी. Good. Talha. So basically, class, let me first write the definition of conditional sentences. Then we will be going to discuss it. So, class, conditional sentences express hypothetical, imaginary, or uncertain situations and their results basic. They consists of 2 parts. This is something, class, which you people need to know. Conditional sentences basically have 2 parts. Which one? For example, if I write the sentence, if you heat ice, it melts. Or it can be ice melts if you heat it. So this is called as clause, and this is called as a conditional part, where we are given a condition. Ma'am, your link is not shared in trial group. Okay, class, can you people give me 1 minute then? Let me call our assistant so that he can share the group in the link in the group. Just give me 1 minute. I'm coming. ओके ओके तलहा, सो आप लोग साथ साथ ट्राई करेंगे. आप लोगों को जो चीज़ न्यू आ रही है, आप लोगों को लगता है कि न्यू है, यू शुड नोट नोट देम डाउन. ठीक है. You, but the topics included in the summative section included in this topic is not a formative section. As summative section instead of wasting time, instead please teach some other topic.
Okay, Ali, so I got your point. Your point is valid, but they haven't sent the framework yet. ठीक है? And secondly, like there are some portions of the grammar, if they talk about it or not, it is included. For example, let me give you a very simple example. They do not talk about tenses in your framework. They will not talk about tenses, tenses are included or not, but somehow the usage of tenses is always included in your objective paper. So there are some aspects, or you can say elements of the grammar which they do not talk about, but they are always included in your paper. Like just suppose types of sentences according to meanings. In second year, they don't talk about types of sentences according to meanings, that they are included or not. But you will be experiencing this thing, that they will be included one objective from types of sentences according to meanings. आप लोग की सबसे पहले क्लास है, और लेट मी टेल यू कि आप लोग लाइक ऑफ कोर्स यू पीपल विल बी फॉलोइंग द basically framework structure, but you should know each and everything related to grammar. You should know about narrations, you should know about parts of speech, you should know about phrases and clauses. Like I'm a teacher, I of course do not want to waste your time. So the things I will be teaching you will be included in your paper. Yes, I have seen it. I have seen it. The model paper, I have seen it. The assessment, I have seen it. I have also gone through the framework, the old framework. They haven't basically discussed about conditional sentences or the tenses, but like they are in the grammar, so we need to do them. Yes, Ali Hassan, you can ask. Okay, class. So basically, conditional sentences. I have asked about the definition of conditional sentences, and you people, आप लोगों ने बताया कि conditional sentences are basically all those types of the sentences where हमारे पास कोई ना कोई condition given होता है, ठीक है, situation is given and then the result or consequence of the same condition or you can say situation is given. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम आप उर्दू में बताएं, सो आपको ऐसे तमाम सेंटेंसेस होते हैं. एक तो आप लोगों ने याद रखना है कि कंडीशनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक दे आर इमेजिनरी, ऑल दोज टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस जो सिर्फ हम उनको इमेजिन कर सकते हैं. अभी हम टाइप्स भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, सो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि व्हाट इज मेंट बाय इमेजिनरी. इमेजिनरी का मतलब होता है द सेंटेंसेस या वो ऐसे एक्शंस जिनका हमारी रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं होता. इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि दे आर द कंडीशनल सेंटेंसेस. फिर आप लोगों को पता होना चाहिए क्लास की कंडीशनल सेंटेंसेस के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन जहां हमें कोई कंडीशन गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हीट आइस, सो बेसिकली ये कंडीशन इज गिवन कि जब आप आइस को, बर्फ को लाइक पिघलाएंगे या गर्म करेंगे, जब आपको एक कंडीशन गिवन है. सो ये पार्ट आपका कहलाएगा कि इसमें कंडीशन है, सो यू पीपल विल बी कॉलिंग इट एज अ कंडीशनल पार्ट. और आफ्टर द इंसर्शन ऑफ कॉमा, कॉमा के बाद जो पार्ट होता है वो मोस्टली कंप्लीट होता है, उसका कंप्लीट सेंस होता है और उसमें कंप्लीट टेंस की यूसेज हुई भी होती है. इट मेल्ट्स, इसको हम कहते हैं, इसको आप क्लॉज भी कह सकते हैं. समहाउ कभी कभार सेंटेंसेस में एज अ सेंटेंस भी यूज हो सकता है. सो फर्स्ट पार्ट आपका कंडीशनल पार्ट होता है, सेकंड पार्ट आपका क्लॉज या सेंटेंस होता है. बट जरूरी नहीं है कि आपका कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट पार्ट कंडीशनल पार्ट ही हो. ठीक है, इट इज नॉट अ मस्ट थिंग. हो सकता है कि आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में पहले आपका क्लॉज हो, फॉर एग्जाम्पल आई स्मेल्ट्स. नाउ यहाँ हमने लिखा था, हम उसको फर्स्ट पे ले आए हैं, इफ यू हीट इट. ठीक है, आपका जो कंडीशनल पार्ट था उसको हम सेकंड नो पे लेके आए. बट देन देयर इज अ रूल, देयर इज अ पंक्चुएशन रूल बेसिकली. अगर आप कंडीशनल पार्ट को फर्स्ट पे लिख रहे हैं ना, इफ यू हीट आइस, तो आप अगर इफ पहले यूज करें तो उस पार्ट के बाद आप लोग कॉमा की यूसेज करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर आप क्लॉज को फर्स्ट पे लिख रहे हैं, यू आर डिस्कसिंग क्लॉज और सेंटेंस इन एट द वेरी स्टार्ट, तो फिर आप लोग इफ के बाद कॉमा की यूसेज नहीं करेंगे. ठीक है, दिस इज द रूल रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेस एज वेल. सो गॉट द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस क्लास. Yes, I have a question related to improvement.
If anyone improved from second angle. Of course, from second annual, if you are improving, if you have improved. Okay. Okay, class. So this was the definition of conditional sentences. Repeating it again, and along with that, you people must know about the basically parts of the conditional sentences as well. एक तो इसमें if की usage होती है mostly, or it is a conditional part. It has a conditional part and it has a clause. Clause कैसे? Basically, clause अगर मैं आप लोगों को बताऊं, so it is basically a group of words which has a complete and perfect sense. अब आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है एनीबडी ऑफ यू के एनीवन ऑफ यू के which to which tense basically this clause belongs? It melts. Present and definite tense. iPhone ठीक है जी, शिजा ठीक है, मोइज ठीक है, मोइज सॉरी, तो आप present and definite tense ठीक है, good. Present simple. Okay. So let us move towards types of sentences, conditional sentences. So the class, the very first one is zero conditional sentence. And just suppose like most of the students were asking the question कि ma'am this is not included in our syllabus. So basically अगर just suppose आपके conditional sentences paper में include नहीं, like I am a teacher, I know कि they are included in your paper, but still अगर आपके conditional sentences include नहीं है तो class आपके बोर्ड में like sentences आते हैं, वो आपके conditional sentences से ही related sentences होते हैं, और आप लोगों से पूछा जाता है कि इन sentences में correct sentence कौन सा है। तो जब तक आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर जो भी हम करने जा रहे हैं वो पता नहीं होंगे, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप इसमें बेसिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, सो लाइक आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास, सो आई होप कि थिंग्स लाइक यू पीपल मेक सेंस ऑफ आउट ऑफ इट। ठीक है, ओके आई थैंक यू सो मच। ओके, सो क्लास टाइप हम स्टार्ट करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले जीरो कंडीशनल सेंटेंस का आप लोगों को स्ट्रक्चर, बेसिकली अगर तीन स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पता हो कंडीशनल सेंटेंसेस के, तो दे आर वे टू इजी टू आइडेंटिफाई। स्ट्रक्चर क्या है जी हमारे पास जीरो कंडीशनल सेंटेंस का? सेंटेंस के स्टार्ट में एफ की यूसेज होती है, ठीक है, देन वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मीन्स प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, ठीक है, जहां हम डू की यूसेज करते हैं, डस की यूसेज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड होता है। ये आप लोग साथ साथ प्लीज क्लास ट्राई टू जॉट इट डाउन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम ईएस और एस की एडिशन करते हैं। along with that प्रेजेंट सिंपल नॉट ओनली मीन्स कि आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस हो, इसमें आपके जो क्लास हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम एंड आर, like at the very start of the sentence making, like in क्लास ग्रेड वन, हम सिंपल सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। इसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं करते, मेन वर्ब्स यूज नहीं करते, बट ये जो इज, एम एंड आर है क्लास क्लास दिस हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो द एग्जांपल्स, आर द हेल्पिंग वर्ब्स आर प्रेजेंट टेंस। तो हो सकता है कि सेंटेंसेस में हम इज, एम और आर की भी यूसेज करें। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद अगेन दूसरे वाले पार्ट में हम अगेन प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। वी हैव बेसिकली डिस्कस्ड इट एंड हैज टू टाइप्स, टू पार्ट्स बेसिकली। सो पहले हम एफ यूज करते हैं, फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, एंड अगेन हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, एंड देन पर्पस आप लोगों को क्लास पता होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करते हैं। बेसिकली कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो, अभी हम इनके एग्जांपल्स करने जा रहे हैं।
इसके साथ साथ कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई भी हैबिट हो किसी भी पर्सन की, लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, उनके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम कहेंगे कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है। हैज हैव भी, नो, हैज हैव की यूसेज नहीं होती यहाँ, आपके सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, और कोई आईएनजी फॉर्म भी यूज नहीं होगी, सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। सो क्लास यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है स्ट्रक्चर एंड पर्पस। अभी हम एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल। ओके मैम, हम बोथ प्रेजेंट सिंपल को कॉमा के साथ अरेंज करेंगे। यस, अस्मा वेट अ मिनट, हम एग्जाम्पल्स भी करने जा रहे हैं बट वी विल बी कंबाइनिंग देम, अगर आप इफ पहले यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको मैं दोनों एग्जाम्पल्स मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके सो लेट मी मेंशन सम एग्जाम्पल्स। So the sentence, if you mix red and blue, comma, you get purple. अब यही सेंटेंस अगर मैं ये लिखूं, we get purple if we mix red and blue. अगर इफ आई एम राइटिंग एट द वेरी स्टार्ट, कॉमा की यूसेज होगी, बट इफ आई एम राइटिंग द कंडीशन इफ इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, देन वी विल नॉट बी यूजिंग अ कॉमा। ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपके पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का एग्जांपल है ना, लाइक मिक्स इज वी आर यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ये एग्जांपल आप लोग देखें, वाटर फ्रीजेस इफ इट इज कोल्ड इनफ। अब जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम एज एम एंड आर की भी यूसेज कर सकते, दिस कैन बी द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट टू। ठीक है। हम क्या यूज करें सेकंड पार्ट में, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस यूज करें बिकॉज वी आर यूजिंग ESRS विद वाटर, ही शी इट। ठीक है। इफ इट इज कोल्ड इनफ, अब आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में तो हम इसकी यूसेज नहीं करते, बट ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ डस भी आ सकता है, यहाँ डू भी आ सकता है, नेगेटिव सेंटेंसेस हों अगर, ठीक है, ES और S भी हो सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होगी, और इसके साथ इज, एम एंड आर की भी यूसेज हो सकती है। सो क्लास, एनी एग्जांपल्स फ्रॉम योर साइड of zero conditional sentences? If you have got this, let me write another sentence as well. So, plants die if they, जरूरी नहीं है कि you people would have the, positive sentences, negative भी हो सकता है, do not get water. सो अब आप लोग कहेंगे कि मैम यहाँ तो डू नॉट कहाँ से आ गया, हम तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, डू नॉट आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डस। ठीक है। ओके सो लेट मी गो थ्रू योर आंसर्स एज सन राइजेस। ओके, हमारा ये आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस दिया है बट कंडीशनल सेंटेंस देना। आईफोन, इफ शी, iPhone, are you Ahmed? If I'm not mistaken. If she sleeps on time, she wakes up. I'm Noor. Okay, Noor. Okay. If you invite him, he'll. अच्छा, well, हम यूज करेंगे बट वो आपके पास नेक्स्ट।
प्रेजेंट सिंपल में इज लगाया है, तो उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो रहा है या ता है आएगा। नहीं, पौधे अगर पौधों को पानी नहीं दिया जाए तो वो मुरझा या मर जाते हैं। लाइक वी हम रहा है नहीं आएगा, रहा है तब आता जब आपके पास आईएनजी होता। लेकिन अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अगेन क्लास मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं। हम वो आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट्स डाई इफ दे आर नॉट गेटिंग वाटर। स्ट्रक्चर ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। ओके क्लास, आप लोगों ने ऊपर, अच्छा अलियान ये आपकी एग्जाम्पल ठीक है, बट आई थिंक you are giving the example of first conditional sentence. If you drop glass it breaks, ठीक है हमारा good. If it rains the weather would be normal mist. Therefore the sentence is correct, but you are using another type of the conditional sentence. इस structure के accordingly आप लोगों ने बताना है। Talha, we will be sharing the recorded lecture with you. She doesn't attend the class today if she skips the school. Like sentence is correct ही है नूर. Nice try. If it rains, I won't. She said the sentence is correct, but it is not first conditional sentence. Zero conditional sentence ना. आप won't use करें, would not use करें. If it rains, I do not go to park. This would be the correct sentence. ठीक है? Okay class. So अच्छा क्लास, आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस मैंने मेंशन किया था, प्लांट्स डाई इफ दे डू नॉट गेट वाटर, इसमें हम कौन सा पर्पस यूज कर रहे थे? वाज इट अ साइंटिफिक फैक्ट? वाज इट अ ट्रूथ? व्हाट वाज दैट? इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉयल्स। यस इट वाज अ फैक्ट। ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है। ठीक है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट, यस इट वाज अ साइंटिफिक फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ भी लाइक इट कैन बी इंक्लूडेड। Unless you hurry, you will miss the bus. ठीक है। Aliyan and Gul, what's your real name? Can you tell us your real name? अच्छा जी, अलियान और गुल ने सेंटेंसेस करेक्ट बनाए हैं, बट जो स्ट्रक्चर था अलियान एंड द अदर वन, ये आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। अभी जो आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाए हैं ना, आप लोगों ने फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस उसमें यूज किया है, वो आपका होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में क्लास बेसिकली लेट अस जस्ट कंसंट्रेट ऑन द स्ट्रक्चर फर्स्ट। स्ट्रक्चर क्या है जी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का? सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे? अगेन वही हम इफ। ठीक है। अगेन हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड एक न्यू चेंज आ जाएगा, इसमें मॉडिफिकेशन आ जाएगी, वो है फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस की। अब सबसे पहले तो क्लास आप लोगों को पता होना चाहिए फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस के बारे में। इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं दैट इज ओनली वेल। ठीक है। और जो आप फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्लास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में क्लास यू पीपल शुड नो कि जो आपकी, okay let me, okay Abdul Mois, I was discussing this question.
टीचर डज ही शी एट, जी ही शी एट के साथ यूज होते हैं बेसिकली, और सिंगुलर नाउन्स के साथ, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स तो तभी आप डज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग, XYZ। इफ वी प्रेस द बटन द टेलीविजन टर्न ऑन, ठीक है जी, इट इज रॉन्ग। क्लास, आप लोगों ने बात याद रखनी है कि आपके जितने भी फ्यूचर के टेंसेस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, एंड दैट इज वेल। अब जो मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है ना कि मैम हम तो एक और हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, एंड दैट इज शेल। ये क्लास, बिकॉज लैंग्वेजेस आर समथिंग जो चेंज होते रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लैंग्वेजेस के चेंज होते रहते हैं। ये जो आपका वेल एंड शेल था, ये बेसिकली आज से 15 साल पहले की इंग्लिश में यूज होता था, बट नाउ योर मॉडर्न इंग्लिश इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस हेल्पिंग वर्ड, इट इज ओनली एक्सेप्टिंग वेल एंड ऑल द टेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये बिल्कुल ही लाइक आप कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से लाइक somehow it is 10% or 8% in usage, like 92% इसकी जो यूसेज है वो रिमूव हो गई है। तो आपने फ्यूचर एंड फ्यूचर टेंस के किसी भी टेंस के बारे में अगर बात करें तो आपने सिर्फ वेल यूज करना है, शैल यूज नहीं करना। ओके अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा जी तलब, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्लास अगर हम बात करें बेसिकली फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस के पर्पस का, कि मैम ये हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। सो देखें, आप जब किसी ऐसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां आप लाइक पर्पस इसका क्या है, कोई भी एक्शन, ठीक है, जो आप प्रेजेंट में डिस्कस करें लेकिन उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। कैसे मिलेगा? नाउ वी विल बी गोइंग थ्रू एग्जांपल्स एज वेल। You are talking about something in present, but the consequence or result will be achieved in future. इस पर्पस के लिए हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं। इसके साथ साथ क्लास, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल जो दोनों सेंटेंसेस है ना, टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, ये हमारी लाइफ को लाइक बहुत रिलेटेड है। अभी जब हम सेकंड थर्ड करेंगे तो फिर आप लोग वहां देखेंगे कि वो बहुत इमेजिनरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारी लाइफ से रिलेट नहीं करते, लेकिन जीरो एंड फर्स्ट आर वेरी मच रिलेटेड टू आवर लाइफ। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? मिस, हमारे स्कूल टीचर ने मेरे छोटे भाई को बोला है कि जहाँ वेल यूज करना है उसकी जगह शेल यूज करो, इट वुड बी बेटर, एंड ही इज वेरी कंफ्यूज इंक्लूडिंग मी। ओके, हाँ ये तो आप लोगों ने क्लास, अगर आप कोई बुक भी देखे ना, कोई भी रीडिंग, ज़ेब अ नाइस क्वेश्चन बाय द वे। आप कोई भी बुक लाइक अगर आपको टीचर लाइक जस्ट टेक माइन एग्जाम्पल, कि मैं भी आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने शेल की यूसेज नहीं करनी, आप लोगों ने सिर्फ, आप लोग ऑफ कोर्स कंफ्यूज होंगे, आप लोग कहेंगे कि मैम हम तो जब बहुत छोटे थे तो हम शेल की भी यूसेज करते थे, वेल की भी यूसेज करते थे। आप कोई भी बुक उठाएं क्लास रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस, तो वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम, वो बुक राइटर्स भी इस हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करें। ठीक है, इट वुड बी बेटर, इट इज नॉट बेटर। और साथ ही साथ क्लास, ये क्यों, व्हाई इज द रीजन दैट वी हैव रिमूव दिस हेल्पिंग वर्ब? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो वेल है ना क्लास, ये आपके जब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कल लाहौर जाऊंगा, आपको पता है आप कल लाहौर जाएंगे, आपको 100% पता है, ठीक है, जिसमें आपकी, आप यकीन से कह रहे हैं, लाइक गॉड फॉर बैड, लेकिन आप यकीन से कह रहे हैं कि आप जाएंगे, ठीक है, वहां हम वेल यूज करते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कल लाहौर जाऊंगा, और उसके साथ आप शेल, शेल हम वहां यूज करते थे जहां हमें फ्यूचर में किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी थी वो बहुत कम शो होती थी, लेकिन अब हमने शेल को भी रिमूव कर दिया, क्योंकि अगर हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि कल मैं लाहौर जाऊंगा, तो इट मीन्स कि मैं लाहौर जाऊंगा। ठीक है, इफ आई वेक अगेन आई विल सरप्राइज माय बेस्टी ऑन हर। ठीक है, आईफोन गुड मूड, सॉरी, यू आर अ गुड गर्ल, यू विल गेट, ठीक है, well and wood, yes Asma, this is what I was about to discuss। उससे कुछ दिन पहले आपसे भी पूछे थे क्वेश्चन। Huzafa, can you name the name of your brother?
Should in the main clause. No, Aliyan, you will not be using should. अच्छा, आप लोग यहाँ तक आप लोग को Zaima. Okay, yes, I remember. Yes, I remember. ओके, सो यहाँ तक आप लोग क्लास समझ आ गई है? प्लीज लेट मी नो ताकि हम एग्जांपल्स पे जाएं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का पर्पस आपको लाइक रियलिटी के बारे में बताता है, समथिंग दैट वी कैन नॉट इग्नोर। ठीक है, सेंटेंस मैंने लिखा था कि प्लांट्स डाई इफ यू डू नॉट वाटर देम। वो मर जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं अगर आप उनको पानी नहीं देंगे। जो सच होता है, जो सच्चाई, लाइक ऐसे सेंटेंस जो आपको, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो पर्पस है फर्स्ट अच्छा, फर्स्ट कंडीशनल, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का पर्पस मैंने बता दिया कि ऐसे एक्शंस के बारे में आप बात करते हैं प्रेजेंट में जिनका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। अभी हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, देन यू पीपल विल बी more cleared about them. Okay, so let us go through the examples. Sentence क्या है जी? We have a sentence, if it rains. We are talking about it in present tense, अगर बारिश होती है। ठीक है, using s with main verb. Why? Because it is it, he, she, it in present indefinite tense. Next part would be containing future indefinite tense. I will take an umbrella. समथिंग दैट यू विल बी डूइंग इन फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको क्या होगा जी? फ्यूचर में आप करेंगे वो काम। ठीक है, यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड। और इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करके दूं अगर आप लोगों को, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, कॉमा, यू विल पास के फेल, फेल। ठीक है, so this is the example of first conditional sentences. You should have your identity card. Aryan, like nice question, nice question. Let me go through the examples, फिर मैं आपको बताती हूँ. Is this any different? Grammar is same. Like grammar is same for both of the classes. If it rains, I will. ठीक है जी, नूर. Weather will get cooler. ठीक है, Huzaifa, sorry, good. If they study together, they will learn faster. ठीक है. If he misses the shot, they will lose the match. ठीक है जी. I will play badminton if I finish making. ठीक है जी. She's a good if she practices every day. She, he, she, ठीक है. She will. ठीक है. Unpass, nice name. If it gets difficult for him, he will quit this. ठीक है. Noor, sorry, Kul. If it rains tomorrow, we will cancel the trip. So class, can you people tell me that why I am using do here? Unless you work hard, you won't pass the test. ठीक है, good, Aliyan. If he learns, he will earn. If he learns, he will. Okay, nice. If we try hard, ठीक है. रुमान, आप if के पार्ट के बाद जो है ना उसके आप कॉमा यूज करें. If we try hard के बाद आपका कॉमा आएगा. ठीक है अस्मा, nice, because it is a part of present indefinite tense. Yes, good. नहीं, आप तलहा बेसिकली इसीलिए मैंने दोनों सेंटेंसेस देखे। ठीक है, यही इसी वजह से मैंने एग्जांपल्स मेंशन किए हैं कि इफ का पार्ट आप सेकंड नंबर पे भी आ सकता है, फर्स्ट नंबर पे भी आ सकता है, दोनों करेक्ट है। ड्यू टू प्रेजेंट है, ठीक है, यू के साथ टू लगा दीजिए, यस ठीक है। ओके क्लास, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. No, we are using do. No, Aliyan, not because of this. We are using do because it is the helping verb of present simple tense, present indefinite tense. And you, ठीक है. G, Muhammad, good. Okay, class. So let us move towards the next one, and the next one is Dania. If you finish yours, you can watch. You can. ठीक है. Sentence is correct.
Yes, Zephyr, you can of course use, because it is a model verb, doesn't make any difference, it doesn't make any difference. मैम आज कितना करेंगे मैम, इसका मतलब हमें पहले प्रेजेंट वाला पार्ट लिखना है उसके बाद फ्यूचर वाला। आप पहले प्रेजेंट वाला भी लिख सकते हैं और आप पहले फ्यूचर वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एफ का पार्ट पहले लिख रहे हैं तो एफ के पार्ट के बाद आप कॉमा यूज करेंगे, अगर एफ का पार्ट आप बाद में लिख रहे हैं तो फिर आप कॉमा यूज नहीं करेंगे। ठीक है। सो क्लास, शुड वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टाइप, और यू पीपल आर सेइंग दैट शुड वी कंटिन्यू इट टुमारो? लेट मी नो प्लीज। Tomorrow, okay. Okay, she's just saying let's end it. Yes, I was thinking next type. Okay, class, हम जल्दी से next two types कर लेते हैं, क्योंकि like majority is of course authority, but majority is saying कि अभी करें। ठीक है जी, second conditional sentence देख लेते हैं क्लास। Second conditional sentences are basically the types of the sentences which are, इनका purpose basically क्या है, ये आपको पता होना चाहिए जी। purpose, they are basically imaginary type of the sentences, ठीक है, which are like do not exist in our real life, and we mostly think about these types of the sentences in our abstract mind। ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो स्ट्रक्चर क्या है जी इसका, इट हैज अगेन इफ, ठीक है। नाउ वी हैव द वेरी मच मॉडिफिकेशन इन टेंस, और वो है पास्ट सिंपल। अब जल्दी से आप लोग रिमाइंड करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, और पास्ट परफेक्ट टेंस के, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स। देन वी यूज वुड, एंड वुड के बाद वी यूज बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई won the lottery, I would buy a house. If I were you, I would take this class. This is very, very important related to your paper. This basically type of the sentence. इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी है क्लास, लेट मी टेल यू। यस, यू पीपल विल बी गेटिंग। ठीक है, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल टेंस में बेसिकली हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ क्लास मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर सकते हैं डेड का, ठीक है। हैड आ सकते हैं आप लोग के पास, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपली आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स आ सकते हैं। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि मैम तो कह रही है कि पास्ट सिंपल टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऑफ कोर्स ये होता है, पास्ट सिंपल टेंस के सारे रूल्स फॉलो होंगे यहाँ, लेकिन साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी इसमें यूज होगा। मेन वर्ब्स नहीं कि आप कहें कि इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे प्लस आईएनजी यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, नो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड फॉर्म, यस, समथिंग, ठीक है जैफा, गुड। अच्छा क्लास, वन थिंग, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है, मैं ये जॉब कर लेता। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी थिंकिंग कि ये तो आई के साथ अगर मैम वर यूज कर रही हैं तो आई के साथ तो हम वाज की यूसेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ किसी ने मेंशन भी किया है, इवन कि मैंने भी मेंशन कर दिया कि हम वाज और वर की यूसेज करेंगे, इंटेंशनली मैंने मेंशन किया है। आप लोगों ने क्लास याद रखना है, और ये आपके पेपर में आता है और स्टूडेंट्स मोस्टली इसको एनकरेज कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, जहां आपको कंडीशन गिवन है और वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, और ये होता भी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में है सिर्फ, वहां आपने हर प्रोनाउन के साथ क्लास वर की यूसेज करनी है। बी एट ही, बी एट शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी प्रोनाउन आपको गिवन है कंडीशनल सेंटेंसेस में आपने सिर्फ वर की यूसेज करनी है, आपने यहाँ वॉज की यूसेज नहीं करनी। अब लग तो आप लोगों को गलत रहा होगा कि ये आई के साथ या ही के साथ हम वर्ड की कैसे यूसेज करेंगे, लेकिन अगर कंडीशनल सेंटेंसेस हैं आपने ये रूल अप्लाई करना है।
अगर तो वो सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज लाफिंग, ही वॉज क्राइंग, तो फिर आप लोग वाज और वर के अपने अपने रूल्स फॉलो करेंगे, क्योंकि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपना एक सिंपल सेंटेंस है, कंडीशनल नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशनल है तो हर प्रोनाउन के साथ आपने वर की यूसेज करनी है। बाय विद बॉट, आई वुड, ओके नाइस क्वेश्चन। यू कैनॉट रिप्लेस इट विद बॉट बिकॉज वुड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। वुड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। इफ आई वर द हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट आई वुड पास आवर स्टूडेंट्स विदाउट एग्जाम्स। नाइस, वेरी नाइस स्ट्रेटेजी। इफ आई वर अ president I would change the rules of my country. Asma good. If I ate the breakfast I would stay healthy. ठीक है class, nice examples. If I would top the exam if I weren't so tense the day before. Okay, she's a good. If they knew the answer, they would tell us. ठीक है, good. Instead of would, here can be could or should. ओके जी, मोहम्मद ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है क्लास। ये सेइंग कि मैम अगर यहाँ हम वुड को ना रिप्लेस कर दें कुड से या शुड से, फॉर एग्जांपल इफ आई वर यू आई कुड, अच्छा कुड अगर आप यूज करेंगे तो फिर कुड के साथ आप लोग हमेशा याद रखा करें कि कुड के साथ फिर आप लोगों ने हैव भी यूज करना है, और हैव के साथ फिर हमेशा आप लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज करना है। फिर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है क्लास। इफ आई वर यू आई कुड हैव या शुड हैव टेकन दिस जॉब, द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन होता क्या है क्लास कि आप लोगों के पेपर में आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। जस्ट सपोज आपके पास सेंटेंसेस हैं जी, पेपर में 4 सेंटेंसेस हैं, वहां कुड हैव भी यूज्ड है, वुड हैव भी यूज्ड है, एंड ये सेंटेंस भी यूज्ड है, इफ आई वर यू आई वुड टेक दिस जॉब। आप लोगों ने इसको चूज करना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि ये सेंटेंस तो सही लग रहा है आप उसको वुड हैव और कुड हैव को चूज कर लें। ग्रामेटिकली वो सेंटेंसेस भी करेक्ट होते हैं, लेकिन पेपर आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रक्चर्स करना है। ठीक है, इफ आई डिड माई होमवर्क आई वुड, ठीक है। ठीक है अलियान, गुड। ओके सो क्लास, शुड वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन प्लीज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी नो, गुड। जी क्लास, लेट मी नो। ओके, ओके। The very last one class for today is basically the third conditional sentence. If we talk about its structure basically, so what is the structure? ये जो आपकी टाइप है सेकंड बेसिकली, second and third class, they are very important related to your exams. If past perfect tense स्पेसिफाई कर दिए हैं, अब मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज होगा। इसके जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारे पास क्या है, हैड, और इसमें हम हमेशा यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फिर अब वुड से हमने थोड़ा सा चेंज कर देना है, वुड के साथ अब हम यूज करेंगे वुड हैव। ठीक है, और जहां हम हैव यूज करते हैं क्लास, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहां भी हम हैज और हैव यूज करते हैं वहां हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और इसका जो पर्पस होता है क्लास, इट इज मोस्टली फॉर द रिग्रेट्स, एनीथिंग जो लाइक वी हैव मिस्ड इन पास्ट और हम उसका बेसिकली प्रेजेंट में डिस्कशन करें। रिग्रेट्स के लिए, जैसे मैं अगर मैं ज्यादा पढ़ता तो मैं पास हो जाता, अगर मैं वो चैप्टर कर लेता तो मैं ये क्वेश्चन कर लेता। ठीक है, जो हम पास्ट में हमारा कोई काम ना हुआ हो और प्रेजेंट में हम उसको डिस्कस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने ज्यादा पढ़ा होता, कॉमा, आई वुड हैव पास्ट, फुल स्टॉप। पास्ट के साथ हम ईडी क्लास इसलिए यूज करें क्योंकि हम हैव की यूसेज करें। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी थिंकिंग कि क्या हम हैव की जगह हैज की यूसेज कर सकते हैं? नो, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आप लोगों ने सिर्फ वुड के साथ हैव की यूसेज करनी है, बिकॉज ऑफ अ रीजन
कि आपके जितने भी क्लास फ्यूचर के टेंसेस हैं, हम वहाँ हैज़ की यूसेज नहीं करते। इट वुड हैव रेनिंग, हमने कभी ये नहीं कहा कि इट वुड हैज़ रेनिंग, नो। जितने भी फ्यूचर टेंसेस हैं हम हैव की यूसेज करते। यहाँ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसलिए लगाया क्योंकि हम हमेशा हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ठीक है। इफ आई हैड नॉट फेल्ड द एग्जाम आई वुड हैव गॉट यस। ठीक है जी नूर। इफ यू हैड टेकन इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन वी वुड हैव स्कोर्ड अ डील विद देम। नाइस टू आर गुड। कुड हैव और वुड हैव हैज नहीं यूज करेंगे। कुड हैव एंड वुड हैव, वुड हैव तो यूज करेंगे, वुड हैव तो यूज करेंगे, सिर्फ हैज यूज नहीं करेंगे। वुड हैव, वुड हैव यूज करेंगे, हैज यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इफ आई हैड अ फोन आई वुड हैव जॉइन। Zephyr, you okay? Okay. Okay. If I had not chosen biology, I would still be traumatized by maths. Oh, so you had maths that much. For example, में studied hard नहीं होगा. Studied hard. ज्यादा पढ़ लेता। ठीक है, ज्यादा पढ़ लेता, लेकिन ज्यादा पढ़ लेता, कंपैरेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो फिर हार्डर होगा। If I had known about the traffic, I would have left earlier. If he had planned early, okay. If I had not pulled an all-nighter, I would have aced the exam. ठीक है शिजा. Okay, class. So, any question? Nice participation. By the way, nice examples from your side. Any question related to conditional sentences? You may ask. If you had saved your money, you would have what? ठीक है, Dania, good. Said I would not have. ठीक है, Noor, good. Class, any question, please let me entertain your questions if you people have. Okay, Faryal, thank you. And what about others? Okay, Jawad, thank you. Okay, Noor. Okay, class, so this was all for today's lecture. Hopefully, I will be sharing notes related to it, quizzes related to it. All those who are my old students, they know my teaching methodologies very well that I at least share 2 to 3 quizzes related to each topic. ये नहीं है कि मैं अब सिर्फ आज के दिन कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड 10 to 15 MCQs आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नो, आई ऑलमोस्ट शेयर लाइक 3 to 4 डिफरेंट क्विजेज रिलेटेड टू ईच टॉपिक। ठीक है। सो आई विल बी शेयरिंग क्विजेज एंड असाइनमेंट्स इन द ग्रुप एज वेल। फर्स्ट ईयर एग्जाम, सो दुआ आपने ली थी क्लासेस? आई थिंक यू आर द न्यू स्टूडेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Zephyr, thank you so much. Thank you so much. Yes, somehow we'll be sharing the notes. ओहो दुआ, फिर आपने ना असाइनमेंट्स, लाइक आई डोंट रिमेम्बर कि आपने असाइनमेंट्स कोई सबमिट की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। असाइनमेंट्स पे आपने काम नहीं किया था ना? बट लेट अस जस्ट होप क्लास कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा है। बाय द वे, व्हेन यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग योर रिजल्ट? Aryan, thank you so much. Yes, yes, दुआ, this is the reason. This is the very reason. लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छे मार्क्स आएंगे। Hope for the best. Okay, okay, August. Okay, okay, class. So this was all about today. It was very nice interaction with you people. You people were new today, but like it, I felt that you people are my old students, and thank you so much for your participation, active participation, by the way. We will be continuing tomorrow with a new topic. Till that, take care and Allah Hafiz.